परमवृक्षा सुरक्षते सर्वदा सर्वसेवेय सर्वदा सर्वसेवेय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। श्रीकृष्णाय नमस्तुते। असाधु साधु तादाइन असाधु साधु नीचो च तक्करा आति नीनो च तत्करा हनमुञ्च कदाचिन अनामुञ्च कदाचिन प्रेमहत्कण्ठयोस्पुरा प्रेम तो सनातन गोस्वामी का we know the story of Sanatan Goswami. So the Sanatan Goswami, he saw in the dream that next one person came and gave Bhagavatam to him, and actually the next day one devotee came and he gave Bhagavatam to him, and from that day onward he made Srimad Bhagavatam as his friend. Madaika Bandho, everything Bhagavatam only. So therefore these prayers are coming from his heart. Every devotee can offer prayers to Srimad Bhagavatam. So we'll also have more prayers by His Holiness Gaur Govind Maharaj. He always recites these prayers before reading Bhagavatam. So these prayers are coming from the heart of Gaur Govind Maharaj, but they are from Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, like that. So I also love these prayers by Gaur Govind Maharaj. So we'll offer these prayers. I will send this, then you can by heart these prayers. Visible, no? You are visible, right? The prayers are visible, right? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. हाँ. जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यासा. Everybody can say. जीवेर निस्तार मायावादी भाष्य सुनिने होय सर्वनाश. मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश. चारि वेद उपनिषदे यत किछु हाय. चारि वेद उपनिषदे यत किछु हाय. तार अर्थ लैया व्यास करिना संचय. ये सूत्रीर निचय वचन. ये भगवते शेर श्लोके निबंधन. कृष्ण भक्ति रस स्वरूप भागवत. कृष्ण भक्ति ताते वेद शास्त्र है ते परम महत्व. भागवत न माने केवलस्तम. हर शास्त्र काम करो, उनको म्यूट करो ना. कृष्ण तुल्य भगवत विभु सर्वाश्रय. कृष्ण तुल्य भगवत विभु सर्वाश्रय. प्रति श्लोके प्रति अक्षरे
हरे कृष्णा। प्रभु इंटरनेट Prabhuji, we cannot hear you. I think Prabhu's internet connectivity is weak. I'll just call and tell him to shift to BVR. Hare. Can you hear me? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Hare. So we'll start again. So Hare Krishna. So here the one shloka, very important that प्रति श्लोके प्रति अक्षर है नाना अर्थ है कृष्ण तुल्य भागवत है ना so the Bhagavad is what Krishna tulya Bhagavad is equivalent to Sri Krishna and therefore it will have multiple meaning so there are so many acharya they will write their own commentary correct so one may say why there are so many commentaries because Krishna tulya Bhagavad because Bhagavad is Krishna and he can reveal to every devotee in a different way. For example, when Krishna is sitting and honoring his prasad with all the coward boys, every boy will see Krishna near him. Every coward boy will see Krishna near him. Why? Because Krishna is like that one. Similarly, Srimad Bhagavatam is actually Krishna. And therefore, we worship Srimad Bhagavatam in the altar. And therefore, each and every devotee should read Bhagavatam properly. Contemplate on Bhagavatam and you see, you will get a different meaning. Of course, that meaning should be in the parampara. That meaning should be in the parampara. The more and more you observe the Srimad Bhagavatam, the Bhagavatam will reciprocate with you. Like his guest Kamal Lakshan Prabhu said, that repetition is the success. A repetition is the key. You have to actually sit and read and observe. Then you will see how the different meanings will come. And not only the meaning is like Jnani person, devotional meaning. Krishna will reciprocate. Why did I sing this song of Gauranga Tumi More Karuna Hive? Because I am reading Chaitanya Charitamrita for hours and hours. So the development, affection will develop to the Lord Chaitanya Mahaprabhu. And now we are all Gaudiya, so we have to develop affection for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because I was hearing that how Chaitanya Mahaprabhu, today morning only I was deeply praying to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Because when he went to Srirangam and he saw one Brahmana who was reading Bhagavad Gita. All of you know this story, correct? We have heard many times. So this Brahmana said that when I see this Rajju Dhari Krishna, that Krishna has taken the Rajju, the ropes of the chariot, I cry. Because how Krishna is merciful. So then he says, but today my happiness has become multiple times, more and more after seeing you. I think you are only the Krishna. You are only the Krishna. Like that he says. Hare Krishna, Prabhuji, sorry to interrupt you. Prabhuji, is it possible to take the camera close to you because your voice. Recording in progress. If it is close, then we can. I don't know. I'm facing this problem. I don't know about others, but I don't know. I'm facing this. माता जी का आवाज क्या आ रहा है? अभी पास से ठीक है प्रभु, जब बहुत दूर से आ रहा था और थोड़ा मतलब बहुत ये करके सुना। आपको आवाज क्लियर नहीं आ रहा था क्या? हाँ आ रहा था लेकिन दूर से आ रहा था, ऐसा लगता है ना। हाँ ठीक, अभी आएंगे। सॉरी, अभी ठीक है। अभी क्लियर है ना? बिल्कुल।
Thank you. So what we are discussing, correct. So Chaitanya Mahaprabhu, when he embraced the Mahaprabhu, when he saw the Mahaprabhu, he said, my happiness has increased multiple times because you are only Krishna. And then Mahaprabhu said, किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं. And then he felt at the lotus feet of Mahaprabhu. He said, please, मुझे छोड़िए मत आप. Please don't leave me. And after that 4 months, he never left Mahaprabhu. He used to be all around in the wherever Mahaprabhu he will go. How can he leave Mahaprabhu? He has tested Chaitanya Mahaprabhu. So similarly, I was thinking that Lord is standing here, but whether I have developed such affection to Chaitanya Mahaprabhu, this Brahmana in one meeting he developed. And we have heard so many times, we have seen here, darshan here, Gaunita, they are Lord Chaitanya only. So why I not develop that much affection for Lord Chaitanya Mahaprabhu? Who is so merciful, he is standing there, he is receiving our worship. So this came because of constant hearing. Because when you hear about some person constantly, the affection will naturally develop. Prabhupada, it will come in one shloka, Tasmadekin Manasa Bhagwan Saptatam Padam. But Prabhupada says in purport, yes, we will see that. Prabhupada says these normal people, they put in newspaper so much propaganda and you will say, yes, this person is great, this person is great. Prabhupada said, these are bogus people. But by just making a false propaganda, if suppose, for example, they put advertise of one person all around our temple, all around our Pune, naturally think, yes, this person must be great. Prabhupada says, by ordinary propaganda also one person can become famous. What to speak of Krishna? How Krishna is so supreme. And when we hear about Krishna, how much we will become what? Supreme. Supremely beneficial when you hear about Krishna, and you will develop attachment to Krishna. Because the attachment to these people is not good. This is ordinary attachment. But when you are hearing about Krishna, this is divine attachment. Therefore, we have to, what we have to do? We have to hear and hear. That point will come in the Srimad Bhagavatam. So now what we will start Srimad Bhagavatam. So this is the second chapter. What is the title of the second chapter? Divinity and Divine Service. So all of you should have your own Bhagavatam copy with you and your paper pen. Generally, I suggest people to mark on the book only. Because some devotees say, we should not mark, this is Krishna. But one Maharaj told me that, yes, on Krishna's space also you do decoration. Na? So similarly, we are doing decoration Srimad Bhagavatam. Hai. So that is possible. So therefore, if you want to do, you can do, otherwise you can. I will do, generally I do. Because how many notes you carry, this laptop, the data is filled in the laptop. But what is the use of laptop data? Na? There are so many Acharya commentary, but that is not the main purpose. 1 minute, I will switch on my video. Laptop data, that is not. So, because, and this, there should be your own notes also. You have to keep reading and keep writing there. What is the personal application? What is the preaching application? What is the point for me? What is inspiring me? So then the study becomes like a living study. ऐसा नहीं कि just बैठे हैं, कोई तो बता रहा है, क्यों बैठा हूँ मुझे पता नहीं है. वो सब मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पे ऐसा कोई है कि जिसको क्योंकि कोर्स करना है बोल के कर रहे हैं. हमारा जो भक्ति वैभव का जो स्टडी है ना, ये क्या है, हम भगवान कृष्ण का स्टडी कर रहे हैं, हम भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं. तो वो कैसा होना चाहिए, एकदम लाइवली होना चाहिए. हाँ, कभी भी आपको लग रहा है बोर है तो मुझे बता दीजिए, हमको बोर हो रहा है, मैं टॉपिक बदल दूंगा, है ना, नहीं तो ब्रेक ले लूंगा, लेकिन बोर कभी नहीं होना चाहिए, है ना. ठीक है. मेरा थोड़ा एक कैमरा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मैंने दूसरे से ज्वाइन किया. अभी आपको दिख रहा है ना. तो अभी विल स्टार्ट द, ऑफ कोर्स अभी डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस का अर्थ कोई बोल सकता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस? बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, करेक्ट? डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस. व्हाई द नेम इज गिवन हियर? कैन एनीबॉडी टेल? और सभी लोग ना अपने आप को एक नंबर दीजिए, सबको एक एक नंबर देना है, क्योंकि सबको पढ़ना है. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो पढ़ेगा नहीं. खट 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 सबको पढ़ ट्रांसलेशन पढ़ना है, ताकि एवरीबॉडी इज एन एक्टिव. ये टेक्निक मैंने हिजगेश हरिलेर बाबू से सीखा है. वो क्या करते थे, ऑनलाइन में सबको नंबर देते थे और सबको पढ़ना ही है, ताकि हमको पता है कि वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, क्या कर रहा है. आप सबको एक एक नंबर दीजिए. कोई होस्ट कौन है? होस्ट आप सबको नंबर देते हो क्या रैंडमली?
क्योंकि वो डबल नहीं होना चाहिए, फटाफट। एक एक नंबर दीजिए खुद को, जैसे अभी सूर्यकांत कृष्ण को आप दीजिए, आपको एक माता जी को दो, जो दो दो लगे, हमें समझ में आता कि कितने लोग हैं टोटल पे। फास्ट रिनेम कर सकते हैं ना आप लोग, फास्ट आप अपना नंबर दीजिए खुद को। रिनेम करो नंबर। हाँ दिया सबने आपका अपना नंबर? Guruji, I'll assign quickly. Surikant Prabhu and Brajgori नंबर Mata, दे सकते हैं, मुझे 1 नहीं and पता। 2. Chandarvind Prabhu and Shiji Mataji, 3 अपने and आपको खुद का नंबर दीजिए ना, रिनेम कर सकते हैं ना। नंबर देना मतलब रिनेम करना है, और वहां पे एंड में जैसे सूर्यकांत कृष्ण प्रभु ब्रैकेट में 1, ब्रजगौरी माता जी ब्रैकेट में 2, फिर ऐसा नंबर देते जाइए आप रिनेम में। Guruji, I will announce the numbers if devotees are not choosing. रिनेम they कर can सकते हैं क्या? rename. होस्ट का है, होस्ट कौन है? Guruji, I am. विश्व की जो वो, उनको रिनेम करने का राइट दे दो ना खुद का, नहीं लगता है? हाँ है ना? देखो मैं खुद को 0 नंबर दे रहा क्योंकि आई एम 0, ठीक है? ऐसा नंबर दीजिए खुद को, समझ गया ना? बस ना आता चेंज मत ना बटकन था। आवाज आ रहा है ना मेरे? क्योंकि अभी तक नंबर आया नहीं। रिनेम में नंबर देना है हमें, और ये नंबर सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। अपने पेपर पे लिख लीजिए आप डायरी में, वॉट एवर नंबर वी हैव गिवन ना, यू हैव टू कीप दैट नंबर। आ गया? नंबर कैसे नहीं आप कर पा रहे? क्योंकि मैं दूसरे को दे नहीं सकता ना, मैं खुद को दे सकता हूँ। नहीं तो हरे देखो इन्होंने दे दिया, आ गया 3 4, अभी बाकी भक्त तुलसी मेहता जी का 8 हो गया, बाकी के कहाँ गए? 8 9 devotees का repeat हो रहा है. 1 2 रिपीट हो रहा है। चरणारविंद प्रभु आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। 1 2 ऑलरेडी आ गया है ना? Prabhuji, I think Anuj Prabhu मदन मोहन प्रभु can नंबर दीजिए खुद assign को। the numbers in the chat. मंग केशव प्रभु Then 10, everybody will do that. यशिक आहूजा प्रभु जी कौन है? सीता रूपी माता जी कौन है? सीता रूप, हाँ, सबको नंबर देना ताकि हमको पता चलेगा, और सबको पढ़ना पड़ेगा नंबर हरे वाइज, ताकि कृष्णा आपको खुद को समझना चाहिए कि अभी मेरा टर्न है। हरे कृष्ण इसमें थोड़ा समय जाएगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलिए, कुछ क्या बोलना चाहते हैं? गुरुजी, मेरे को 5 मिनट दीजिए, मेरे पास आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी? किसी को आ रहा है क्या? कि मुझे नहीं आ रहा है? Prabhuji, आ रहा है, आवाज आ रहा है। We can hear प्रभु जी। हाँ गुरुजी, मेरे को 5 मिनट दीजिए, मैं सबका एक्सेल में नंबर एलोकेट करके मैं भेज दूंगा ग्रुप पर, फिर डिवोटीज अकॉर्डिंगली रिनेम कर देंगे, तब तक हम क्लास कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो अभी डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, इसका अर्थ कौन बोल सकता है? आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन कि व्हाई द टाइटल इज डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। आई विल नॉट फॉरगेट द क्वेश्चन। व्हाई द टाइटल इज गिवन डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस? हु कैन टेल? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्णा। हाउ इट इज कनेक्टेड टू प्रीवियस चैप्टर? Prabhuji, divinity is Lord Krishna, divine service is his devotional service. It is connected to the previous chapter because the sages have asked, what is for the beneficial of entire mankind? Please describe the pastimes of the Lord. So therefore, divinity and divine. प्रभु जी दिसत That is नाही। understanding. कुठे दिसतात? Correct, divine service, correct. Because they ask ना कि सौम्य पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अदोक्षसे अहेतु की अपतियाता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये आत्मा means all the आत्मा सुप्रसिद्ध थी, means supremely beneficial. How they will become supremely beneficial? So therefore this second chapter ना आपको सबको याद होना चाहिए। हम अभी रिसाइड करेंगे सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर, मैंने पूरा याद कर लिया, हर एक श्लोक इतना इंपॉर्टेंट, मैंने कितने 100 बार तो भी पढ़ लिया हूँ अब तक। इतना इंपॉर्टेंट है ना फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड में से भी कुछ लोग। फर्स्ट कैंटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? कितने लोग लगता है कि फर्स्ट कैंटो के पहले 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है ना? जब भी आप जैसे कभी भी कुछ आपको हार्ट में कुछ ये हो रहा है, लोनलीनेस आ रहा है, यू आर फीलिंग अरे व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम सो मेनी डेज, इफ यू रीड व्हिच सेक्शन, नारद मुनि सेक्शन, how Vasudev he feels loneliness and he prays to Lord, and then who comes there? Narada, the appearance of Narada,
Prabhupada says Narad Muni has mercifully appeared at the end of the 4th chapter. Prabhupada says in purport. And then Narad Muni guides who? Vyasadeva. So Vyasadeva, having compiled the 4 Vedas, having the Shishya, Prashishya, thousands and thousands of Shishya, still he was feeling incompleteness, loneliness. So what to speak of all of us? We can feel any time. In a day also we'll feel loneliness. Why we'll feel loneliness? If you have not done pure devotional service at least for some time. At least for some time. And therefore we'll feel total emptiness. And if we are only empty, what welfare you can do for other people? We cannot do anything. So therefore, first we have to feel complete satisfaction. And that is possible. Savay punsam paro dharma yatho bhakti radokshaje. Hetu kya pratihata yatmasu prasidati. There is no other shortcuts. Somebody can say, I will become consular, I will become president, I will become GBC, I will become guru, then I will be happy. No chance. Vyasdev, he became guru of the guru, still he was feeling loneliness. So again and again, if you have any issue, come back to the first canto. Come back to the first canto, these chapters. And especially we should always remember one verse. This is one verse, is always very important for me. What? Kalimagatam kshetresmin vaishnave vayam asina dirghasatrena kathaya akshana hare. What these sages are telling? Kali Mahagatam Adnya, Baba, Kali aa gaya hai. Kali aa raha hai. So therefore, daro. Sit quickly here. Kali Mahagatam Adnya, Kshetresmin, sab Vaishnav kahan jama ho gaye? Naimisharanya. What they are doing? Kali Mahagatam Adnya, Kshetresmin Vaishnave, Vayam Asina, Dirgha Satrena. Dirgha Satra ke liye Kathaya Sakshana Hare. अपनी पूरी शक्ति के साथ अभी हम कथा सुनेंगे और क्या 1 घंटा 2 घंटा नहीं 1000 साल 1000 years 1000 years and that was the situation 5000 years before. And what is the situation now? We are not fearful of the Yuga. So one of the favorite devotees is Devakinandan from Singapore. When I was in Singapore, I used to go his house and hear Bhagavatam. He every day reads 2.5 hours Bhagavatam for so many days. And one lecture he gave me at that time, I still remember, about Gajendra Moksha. Gajendra Moksha, ki kaise, when crocodile caught the Gajendra leg for 1000 years, at that point, then Gajendra realized that it is not possible for any human being to get relief. I have to pray to Supreme Lord. And then he prayed. What a beautiful prayer. Very nice prayer here, Gajendra Moksha prayer. Very famous in South India. People recite this Gajendra Moksha prayer. So, this loka we should always remember. What? Kalim agatam adnyaya kshetresmin vaishnavayamayam asina dirgha satrena kathaya sakyana. Correct? So, this Sandeep Prabhu, you have not kept the number to you. You can rename yourself and give the number on the send on the chat. Others, I think they got the number now. This Parmeshwari Mataji, she doesn't have number. Madan Mohan Prabhu, you can help Mataji. सबको नंबर दिया है ना उन्होंने chat पे. Okay. So now we'll start from. So this chapter has total 3 sections: 1 to 11, then 12 to 22, and then 22 to remaining 32. So the first section we have covered, where the questions are answered. The first and second question: what is the essence of all the scripture, and what is the best? What is the 2 shloka? Savai punsam paro dharmo yatho bhakti radokshaje ahetukya patyata yatmasu prasidati vasudeve bhagavati bhakti yoga payajata jane pyashu vairagyam jnanam chayat ahetukam. So these 2 shlokas are actually the answer to the both questions. Savai punsam paro dharmo. What is that bhakti? What is that? Vasudeve bhagavati bhakti yoga payajata jane pyashu vairagyam jnanam chayat ahetukam. So these 2 questions are answered in these 2 shlokas. So now what are the remaining questions? So what is the 11th shloka? What is the 11th shloka? Vadanti tat tattva vidas. You are unable to see me. I am already there only. प्रभु मुझे हाईलाइट करो ना. दिख रहा है ना, मुझे तो दिख रहा है. मेरा एक 2 जगह से लॉगिन किया, वो मत करो मुझे. और एक मैंने लॉगिन किया, उसको स्पॉटलाइट मत करो. ओके. दिखा कि नहीं?
नहीं दिख रहा है? 1 second प्रभु जी। माधव सेवा दूसरा लॉगिन है ना मेरा। नहीं दिख रहा है आपको? दो लॉगिन नहीं दिख रहा है? 1 second, I am just checking. उसका वीडियो ऑन रखा है मैंने। देखो Yes, दो sir. माधव सेवा मिल गया। Yes, ma'am. हाँ, उसको आप ना ये करो, उसको हाईलाइट करो। Done प्रभु जी। हाँ ठीक है। सॉरी, अभी मेरा कैमरा मैं ठीक कर लेता हूँ। कैमरा मेरा थोड़ा खराब हुआ। ठीक है। सो वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं तत् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। So this was the shloka कि the sages define the absolute truth in the 3 phases: ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। ठीक है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। So what is that तत्व? Correct. तत्व क्या है और उस तत्व को कैसे जानना है? अभी यहाँ से लिंक चालू हो जाएंगे। उन्होंने तत्व बता दिया। In the 11th shloka they told what is that tattva. Vadanti tattvavidas tattvam yad jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdate. Correct. So now how to approach, how to understand, how to realize that tattva is mentioned in the shlokas 12 to 22 and the rest of the chapter. Actually, the rest of the chapter, the same thing is repeating. In the entire Srimad Bhagavatam is actually the question, answer to the first question only. First 2 questions. What is the essence of all the scripture and what is the most important for all the human being who is going to die? Entire Bhagavatam is the answer. So one should not become confused. अरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहाँ है? अरे क्वेश्चन नंबर, वैसा नहीं, पूरा भागवतम इसका आंसर है। मेरा समझ है ना आपको कि entire Bhagavatam is to answer this ना. The essence of all the scripture is Srimad Bhagavatam. Of all the scripture is to hear Krishna Katha, chant Hare Krishna. So that is the essence of entire Srimad Bhagavatam. Correct. समझ रहे हैं ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? हम कहाँ है? सबको, किसी को कुछ प्रश्न है, डाउट है, फ्लो में कुछ बाधा है ना? सो नाउ विल बी फोकसिंग टुडे ओनली, विल फोकस चैप्टर श्लोका 12 to 22 and tomorrow we will complete the shlokas 23 to 33 Krishna willing. Okay. So now what is the 12th shloka? So अभी आप पहले पढ़िए, कौन से प्रभु जी पढ़ेंगे? नंबर 1 पढ़िए आप अभी, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, श्लोका, नहीं तो आपके पास बुक है ना, बुक से पढ़िए। Prabhuji, it's Anand Mohan Das, right? हाँ, मुझे कहाँ है नंबर कहाँ है? Yes, Mr. Prabhuji, it's 1. हाँ पढ़िए। Yeah, it's ready. Translation. Yeah, श्लोक पढ़ना है, श्लोक जरूरी है। तच्छ्रद्धाना मुनयः, मुनयो तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। Translation. The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. Purport. The absolute truth is realized in एक मिनट अभी एक मिनट रुकिए। अभी देखिए, हाँ, पर्पट में जाने के बारे में आपको बताता हूँ। अभी तच मतलब वो तत्व, तत् मतलब वो तत्व। अभी हमेशा भागवतम का कनेक्शन होता है। तत् श्रद्धाना, अभी वो जो तत्व है वो कैसे समझना है? श्रद्धाना, वो मुनि लोग कैसे समझते? देखिए, अभी इसका जो हमें अन्वय आना चाहिए। उस दिन कमल लोचन प्रभु आए थे ना, उन्होंने क्या बोला कि हमारा अन्वय हमको समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? अन्वय। करेक्ट। वो अभी ये जो श्लोक अगर हम अच्छे समझ में आएंगे तो पूरा प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ना हमको समझ में आएगा। ये अगर हमको अच्छे से समझा, क्या ये जो श्लोक का जो हर एक शब्द यहाँ पे क्यों आया है, इसका अर्थ क्या, ये समझने के बाद आपको समझेंगे कि प्रभुपाद ने पर्पट में क्या लिखा है। नहीं तो लोगों को लगता है प्रभुपाद इज टेलिंग द सेम थिंग, प्रभुपाद इज टेलिंग द सेम थिंग, बट इट इज नॉट लाइक दैट। प्रभुपाद इज नॉट टेलिंग द सेम थिंग। हाँ, ये हमें कब समझ में आता है? जब हम देखते कि वो पर्पट जो इसमें शब्द है ना वही प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, अभी इसमें कौन कौन से शब्द देखिए? श्रद्धाना मुनया ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति चात्मानं भक्त्या सुत गृहीतया। ठीक है, तो अभी इसमें
युक्तया, क्या युक्तया? ये भक्ति कैसे युक्त है? ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति करते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? सुत गुहितया, सुनने से। ये कौन सा सुनना है? वेद पुराण, श्रुति पुराण आदि पंचरात्र विधि में ना एकांति की हरेर भक्ति उत्पाताय व कल्पते। तो ये जो भक्ति कौन सी है? जो अच्छे से वेद पुराणों में दी है, शास्त्रों में दी है। ऐसी भक्ति जब हम करते हैं, ऐसी भक्ति जब हम करते हैं सुत गुहितया, तब आपको तत्व समझ में आता है, ऐसे समझ में आता नहीं है। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रश्न है कि कोई शब्द समझा नहीं आपको? हर एक शब्द, पश्यन्ति चात्मनि चात्मानम। अभी पश्यन्ति वो व्यक्ति भगवान को देखता है अपने आप में, भगवान को अपने आप में, मतलब उसको भगवान का स्वरूप का दर्शन हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इसका तात्पर्य पढ़ो आप वापस एक बार, ट्रांसलेशन पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. हाँ, clear. See, means Prabhupada, what Prabhupada says, because you have the student has to be serious, and in purport he will tell like that. In purport where Prabhupada will use this word, I will let you know. When you read, Prabhupada clearly says कि this bhakti is not for the sajiya. सब कुछ चलता है, नहीं. The serious, the student should be serious. And how it is serious? He has jnana and vairagya both. You can't say that I can drink tea also and I am also pure devotee. No, that has happened in Bengal. That has happened in Bengal. So many Apasampradaya, they will be chanting so many mantras and still they say we are Vaishnava. So there has to be both things, detachment and proper jnana. Here jnana is not this speculation jnana. The jnana about the bhakti jnana. What is bhakti? What is not bhakti? What is shastra? What is a parampara? What is sampradaya? What should I read? What should I not read? That knowledge. And when a serious sadhaka who is equipped with such jnana and detachment, he hears and he has heard from the Vedanta Shruti, from the authorized devotees, then he will realize the absolute truth. Then he will realize the absolute truth. ठीक है, नौ पढ़िए, 1 and 2 बोथ पढ़ सकते थोड़ा थोड़ा, ठीक है? नंबर 1 and 2। और आपका पुस्तक में ध्यान होना चाहिए, पुस्तक में ध्यान देना हमें। पढ़िए प्रभु जी। The absolute truth is realized in full by the process of devotional service to the Lord Vasudeva, or the personality of Godhead, who is the full-fledged absolute truth. Brahman in his transcendental body effulgence and Paramatma in his partial representation. As such, Brahman or Paramatma realization of the absolute truth is but a partial realization. There are four different types of human beings: the karmis, the jnanis, the yogis, and the devotees. The karmis are materialistic, whereas the other three are transcendental. The first class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. The second class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the Absolute Person. And the third class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus of the Absolute Person. As stated in the Bhagavad Gita and the other Vedic literatures, the Supreme Person is realized by devotional service, which is backed by full knowledge and detachment from material association. We have already discussed the point that devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. As Brahman and Paramatma realization are imperfect realizations of the absolute truth, so the means of realizing Brahman and Paramatma, that is the paths of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing the absolute truth. Devotional service, which is based on the foreground of full knowledge, combined with detachment from material association, and which is fixed by the oral reception of the Vedanta Shruti, is the only perfect method.
by which the seriously inquisitive student can realize devotional service is not therefore meant for the real less intelligent class of transcendentalists. There are three classes of devotees, namely first, second, and third class. One minute. Prabhuji, see. So now here, why Prabhupada is bringing these things, see, because what is mentioned there, serious student. Because he has, why Prabhupada is, Acharya is writing this thing, because Prabhupada is traveling in Mayapur, Vrindavan, and he wants that his disciples should be very careful. So therefore, he will mention now, Sahajiya. So this entire, what I have done, because if you read all the paragraph of this chapter, then we will not be able to complete the syllabus. Okay. So now in the first paragraph, what I do, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. So in paragraph 1, and all of you should also read and write in 1 or 2 lines what Prabhupada want to mention in the paragraph. So first paragraph, Prabhupada says serious. The devotion is serious and it should have the knowledge plus detachment. And we have to have the oral reception. This is the only perfect method that will come. This is the only perfect. See, I see there, I will read. Devotional service which is based on the foreground of the full knowledge combined with the detachment from total association and which is fixed by the oral reception of the Vedanta Shruti is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the absolute truth. See, this is the very important line in this entire purport. Entire purport is important, but this, see, entire crux, what Prabhupada says, every word is important. Is the only perfect method. Oral reception, detachment from the material association, and full knowledge, which is based on the foreground of devotion service. Then, with such method, you can realize the absolute truth, which is mentioned in the shloka number 11. This point is clear. Is this point clear to all devotees? Yes, Prabhuji. Clear na this point, P1. Now, if we go to paragraph 2. Okay. So, paragraph 2, Prabhupada talks about the third class devotee. What is the third class devotee, therefore, has to receive the instruction of the devotional service from the authoritative sources of Bhagavad. Like in Mayavadi, Prabhupada says in Vrindavan, if you go, they say, ये सब किताब लिखने का क्या जरूरत है? Even they criticize Rupa Goswami. They criticize Bhaktisiddhanta Saraswati. If you go to Radhakund Baba, na, they criticize. They say that Baba means they should have only Raganuga Bhakti. In our Gaudiya, there is no such kind of thing. But Prabhupada says that our Goswamis have written so much literature. So these people are come in the category of this third class people. They don't follow the authority of Srimad Bhagavatam. All the great Acharyas, Sridhar Swami, they are saying that we have to follow the authority, parampara. So therefore, Prabhupada says such devotees must hear from the Bhagavat. The message of Bhagavatam they should hear. And they should not hear from the professional man. I know one devotee, he used to come out temple, he used to come in my classes also. But he said, Ki Prabhuji, idhar ek katha aa raha hai, jao. I saw that he wanted to go. I said, okay, go. And then finally he took initiation from one Mataji who was very professional in reciting Bhagavatam. He took initiation. Now after that he said, Prabhuji, that Mataji left now. So I will have only the Ashwachana of ISKCON devotee. I said, come here. Means why do you take initiation there? You take initiation somewhere and they don't give the complete facility. Initiation doesn't mean that you initiate somebody and threw you on the road. No. Initiation doesn't complete till that person go back to Godhead. Till that initiation is not complete. The person who is recommending, if you are recommending somebody for initiation, you have to make facility for his spiritual growth throughout his life. For example, where that person is living, is he connected to local temple? Is he taking prasad? Is he chanting Hare Krishna? Is he hearing classes? He may not be with you. He may be going to another city, but it is your responsibility. Otherwise, you should not recommend. Because recommending, because our spiritual master, they don't have time. And when somebody is recommending, he is thinking that you are responsible for this person. Otherwise, it is the responsibility of the guru to take care of the disciple. Otherwise, he should not initiate. If somebody is giving initiation, he has to make facility that my disciple should get some spiritual support till he leaves. So therefore, we need many gurus.
We need Mary Guru. So here, Prabhupada says we have to hear from a Guru, not a professional reciter. And traditionally, what was the system? In Chaitanya Charitamrita, Prabhupada says only Grihastha can become Guru. Sannyasi should not become Guru. A good point for all of you. All the Grihastha devotees are sitting, they should become. They should become. Because it is mentioned in Chaitanya Charitamrita. I am not saying. Because the sannyasi, he doesn't have any money. He simply travels. The Grihastha have the money. He has the deity. And generally initiation means to Grihastha. And he will initiate the Grihastha family, engage them in deity worship, chanting Hare Krishna, festival. Sannyasi, they don't have. They simply chant. Like Madhavendra Puri. He is the Guru of Advaitacharya. He is the Guru of all the Gurus. He travels and gives support to them. But their management, they do. Otherwise, so many problems happen. So many problems happen. Yes, everybody knows. We cannot hide it. So we need. His Holiness Bhagavad Maharaj said that all these Grihastha, Vanapastha should be made the Guru. And they should take care of entire management, temple, initiation, everything. Correct. So, and because that is not there, people go here and there. Isse katha sunu kya? Usse katha sunu. He is not satisfied. Na? He is not satisfied. But that was not the method earlier. Na? You had to go to the Guru, daily serve him and hear from him. Whether you are a Grihastha, generally Grihastha only get initiation. So therefore, such problem comes. The devotee left, he heard, and now he is saying, Prabhuji, वो मेरे गुरु तो चले गए, मैं तुमने दीक्षा क्यों लिया? अभी मैं आपको गाइड नहीं कर सकता. आप आके यहाँ पे भक्ति करो, सुनो, बस पर्सनल गाइडेंस कैसे दे सकते है ना? तो Prabhuji, I have a question. Can I? क्या आवाज नहीं आ रहा है? Prabhuji, I have a question. Can I ask? Just एक मिनट. Give you chance है ना? आप पेपर पे लिख लो पहले, नहीं तो भूल जाओगे. So clearly here it is mentioned that we should not hear from the professional reciter. It is not on Srimad Bhagavatam class, you have to make jokes only. If you really talk about Krishna, nobody will feel the need of having joke. Humor will come naturally because Krishna is humorous. Vraje siddham navanita choram. Gopangana anana dasya choram. And everything is, in Krishna consciousness, everything will come because the heart becomes satisfied. More you hear about Krishna, more you hear about Bhagavatam, Acharya song, you forget all the material thing. We material, you forget about all material thing. There is no need of masala. Bhagavatam is itself everything. So that is the second point in the second paragraph. Most important point. Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam are undoubtedly transcendental subjects. But even though they are so, such a transcendental matters are not to be received from the professional man. Second paragraph ka last point here. Who spoils them? The serpent spoils milk simply by the touch of his tongue. If you see, even if you are given a pure milk, but if सांप आके उसको फुस मार के आपको पता नहीं चलेगा. तो ये लोग कथा करेंगे, सब कुछ बोलेंगे, कृष्ण का, लेकिन सडनली एक पॉइंट डाल देंगे. वो पॉइंट से पूरा फिलोसफी गायब हो जाएगा. पूरा फिलोसफी, पूरा पानी. यस, भगवान में एक होना है, बस ये हमारा. तो उनको लोगों को सब कीर्तन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन लास्ट में पॉइंट क्या डालेंगे? भगवान में एक रूप होना है. तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम किससे सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना इतना पावरफुल होता है ना कि वो व्यक्ति को पूरा हैंडीकैप कर देता है. मैंने ऐसे लोगों को देखा है इस्कॉन में. उनका शिक्षा गुरु इस्कॉन छोड़ के चला गया, दूसरे संप्रदाय में गया, लेकिन फिर भी उसी से आ सकते हैं, क्योंकि हियरिंग विल डैमेज यू. हियरिंग इज सो पावरफुल. देयरफॉर हिटलर ने क्या किया था? पूरे बड़े बड़े हाउसेस बनाए थे. उस समय में यूट्यूब नहीं था, और वो सबको बोलता था कि आपको आगे जाना है, यू आर द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड, अदर पीपल आर यूजलेस. कैसे कन्विंस किया हिटलर ने पूरे जर्मन लोगों को, और पूरे जर्मनी ने पूरा वर्ल्ड वॉर क्या सोचिया. ये ताकत होता है किसका? हियरिंग का. पीपल कैन बिकम हैंडीकैप, पीपल कैन बिकम ब्रेन वॉश. And that's not what is happening now. Nashta prayasha padresha nitya bhagavata seva. We are also becoming clean by hearing Srimad Bhagavatam from the pure devotee. And once you hear the Srimad Bhagavatam from the pure devotee, the contamination of the years and years and years, lives finish. That is the power of hearing Srimad. Therefore, Gaur Govind Maharaj, when Gaur Govind Maharaj was in Bhubaneswar, thousands of foreigner devotees were there. How many? Thousands of. Now, Gaur Govind Maharaj is not a beautiful person. He doesn't crack joke. He is a very heavy person. He will shout at you. But thousands and thousands of foreigners were gathering to hear from him.
to hear from Gaur Govind Maharaj. That is the power of the pure devotion. So therefore, it is very, very important that one has to hear from authorized source, from the parampara. And now the third paragraph, because why I'm spending so much time, this is the crux. The process is given to understand the absolute truth. So what is the third paragraph? Prabhupada, third paragraph, same point. Prabhupada is furthering the same point, Stuti, Smuti, Puranadi, but Prabhupada didn't mention the shloka here. What he says? Unless therefore the devotional service is established on the principle of Stuti, Smuti, Purana or Pancharatra authorities, the mixture of the devotional service should at once be rejected. And last but 4-5 lines of the paragraph. Stuti, Smuti, Puranadi, Pancharatra videmina, ekanti ki harer bhakti utpata eva kalpate. That's what Prabhupada is mentioning here in the last. So now we can see the Acharya's commentary also. So before that, माता जी का प्रश्न था, पूछे, फिर मैं थोड़ा आचार्य के कमेंट्री से थोड़ा लूंगा, थोड़ा। हाँ, पूछिए क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन के अभी आपने बोला था कि चैतन्य चरितमृत में दिया कि गृहस्थ जो है वो मतलब ज्यादा अच्छे गुरु होना चाहिए, गुरु होते हैं एज कंपेयर टू सन्यासी होने चाहिए आइडियली गुरु। ओके, बट प्रभु जी जैसे जो सन्यासीज है, मैंने उनको भी देखा कि हमारे लोकल टेम्पल में वो सर्व करते हैं डीटीज को, उनका अभिषेक करते हैं, मतलब उनकी ड्यूटीज रोज चेंज होती रहती हैं, मतलब मॉर्निंग में जैसे हो। अब इस्कॉन का आप पूरा एग्जांपल मत लो, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि कलयुग में है ना कि ये सब किबन ऐसी शूद्र के है, ही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तो प्रभुपाद उस परपट में ये भी लिखते हैं, बट बिकॉज चेतन महाप्रभु सेड किब विप्र किबन ऐसी शूद्र के है, से कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। Therefore, anybody who knows the Krishna Tattva, he can become Guru. Correct. We are talking of the ideal system. We are talking about the ideal system. So sannyasi can install deity, but he will go away, na? He will go to another temple. Who will take care of the deity? Grihastha. And sannyasi will go. He will install the deity, give blessings and travel. That is our sannyasi is also traveling, na? You see. Correct. But most of the senior devotees मैंने उनको देखा है, मतलब वो सर्व करते हैं, मतलब जो लोअर सन्यासी से जो थोड़े कम उसमें होते हैं। क्या प्रश्न आपका? सन्यासी को तो सबको सर्विंग करना ही चाहिए, क्योंकि सन्यासी इज द इन चार्ज ऑफ ऑल द 4 varna 4 ashrama. Is the topmost. Everybody has, even the gurus also have to serve him, because he is the boss of all the 4 varna and 4 ashrama. So everybody has to serve him. What is the problem? नहीं प्रभु जी, जो HG मतलब जो हिज ग्रेस, प्रभु जी एक्चुअली शायद मैं कंफ्यूज कर गई हूँ। मैं कह रही थी कि जैसे जो HG लेवल पे मैंने बहुत सारे सन्यासीज को देखा है, मतलब वो सर्व मतलब ब्रह्मचारीज को देखा है मैंने कि वो सर्व करते हैं मतलब डीटीज को, तो फिर वही जाके HH लेवल पे जैसे जाते हैं। तो जो ब्रह्मचारी करंटली इस्कॉन में है ना, वो सन्यासी एक्चुअली नहीं है, लेकिन वो सन्यासी का रोल कर रहे हैं, क्योंकि लाल कपड़ा ये सन्यासी को ही मिलता है। बाहर के लोग महाराज ही बोलेंगे आपको। ब्रह्मचारी मीन्स फ्रॉम 8 to 21 ओनली, दैट इज ब्रह्मचारी। आफ्टर दैट यू हैव टू गेट मैरिज और सन्यास, दैट वाज इन द सिस्टम। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैज स्टार्टेड दिस बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग, करेक्ट? एंड द ब्रह्मचारी आर सपोज्ड टू लिव ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन्यास, दे आर सपोज्ड टू लिव। इवन द गृहस्थास दे आर आल्सो, मतलब यू हैव टू ग्रो। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषयत धीरा सर्वान अपि मां पृथुविं सशिष्यत। And those grihastha will become guru. It is not by power they will become guru. How many councils I have, how many temples I have built? No, not because of that. How much shastra they have read, how much sense control they have. Vacho vegam manas krodha vegam. You cannot demand that I have to become guru. Nobody will accept you guru also. Even if ISKCON will make you guru, it is possible by the pressure you may have to make the guru. It is possible because there is organization pressure, because I am in organization from 25 years. Yes, and if you see the Prabhupada writes in the IDC course, आप में से कितने लोगों ने किया है? IDC course मेरा सबसे फेवरेट है। उस IDC course में मेरे साथ जिसने क्या मैं क्लियर बताया था कि वहाँ पे क्लियर लिखा है कि because of organizational pressure, somebody should be given sannyas, somebody will be made guru. But you have to judge the guru. It is your choice. And what is the judging criteria? Vacho vegam, manasa krodha vegam, jiva vegam, udar upastha vegam, etan veganyo vishyat dhira,
सर्वान अपिमाम पृथ्वीम सशिष्य. When he opens his mouth, what he speaks, whether he bluffs or he talks about Shastra, he talks about Chaitanya Mahaprabhu, talk about Prabhupada, talk about previous Acharya. There's so much to talk, but you talk mundane topic, this example, that example, उससे उसका भी फायदा नहीं होने वाला, ना जो सुनने वाले उसका फायदा होने वाला है. आप भगवान के बारे में बोलो ना, चैतन्य महाप्रभु के आने की लीला है, प्रभुपाद जी की लीला है, इस्कॉन के बड़े बड़े सन्यासी उनकी लीला है, उसके बारे में बोलो. मंडन एग्जाम्पल क्यों देते रहते हो, और उसके कारण वो कुछ फायदा नहीं होता. समझ गए ना. तो ये हमको देखना है कि ये व्यक्ति का शास्त्र में कितना पक्का है, शास्त्रों का निचोड़ कैसा, उसका खुद का चरित्र कैसा है, उसका पैसा स्त्री जन इसके साथ क्या संबंध है. जैसे मैंने देखे हनुमत पिशित महाराज, सच में मैंने उनको सेवा किया है, मेरे गुरु ने, लेकिन मैं उनसे बहुत इंप्रेस हो गया. वो केवल 2 कपड़े रखते हैं, एक बॉडी पे और एक दूसरा, शर्ट भी नहीं पहनते, और उनके पास एक ही बुक रहता है, इनोवा है, एक थैले, एक ऐसा सुंदर थैली. कितने लोगों ने उनको देखा है, हमारे मंदिर में आए थे हनुमत प्रेषित महाराज. ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ज्यादा लोगों को पता नहीं. अभी वो राधा कुंड में रहते. एवरी डे गेट्स अप एट 12:30 and 12:30 starts chanting Hare Krishna. 12:30 से every day from so many years he starts chanting Hare Krishna, है ना. And he doesn't want so many people, और टोटल किसी को पता ही ना लगे इतनी सीनियर ड्यूटी है. और वो एकदम हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को प्रचार करते हैं, हाईली. आपको लगे क्या किसको प्रचार करते हैं, लेकिन करते हैं. उनके ओपोनेंट अमेरिका से लोग उनको मिलने राधा कुंड आते हैं. मतलब उनके शिष्य मुझे बोल रहे थे, मुझे फॉर्चुनेटली उनका सेवा करने का थोड़ा मौका मिला था. उनको देखा मैं गोस्वामी का जीवन जी रहे. किसका एक्चुअली, मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि कोई सन्यासी गाड़ी में घूम रहा, मतलब उन्हें ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है. वॉट एवर इज गुरु टोल्ड वी हैव टू फॉलो. अभी सपोज कोई सन्यासी फ्लाइट से जा रहा है, मतलब वो नहीं कि वो सन्यासी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. Whatever is required for Krishna service, Prabhupada said, once Prabhupada was in Rolls Royce, reporter said, Swami, you are a sannyasi and you are using such a car? He said, if your president come to India, can we give him a tin car? No, you have to give topmost car of India. And if the God's representative come to your country, what car will you give? You should give me the golden car. This is the iron car you are giving me. You should give on the diamond car. I am accepting on behalf of God. Understand? And he said, yes. So one should not judge. हमारे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, वो जब न्यू वृंदावन में टेम्पल में बोले मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे बहुत ऑपुलेंट है, ये है, तो उनके सीनियर गॉर्डन ने बोला दिस इज माया. If your guru wants you to live in palace, you must live in palace. And if you say no, the tree is good, then you are in maya, because whatever guru says you have to do. And if your guru says live in the heart, you live in the heart. So one cannot judge, but we are therefore external. We should not be attacked. We have to see what is his Krishna Bhakti, what he speaks, how he is dedicated to his spiritual master. Like he is one of the sannyasi, His Holiness Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj. When he came to one temple, and one of his disciples, he left ISKCON, and he has taken some land. So he came, he wanted to offer garland to Maharaj. Maharaj said, no, I don't want garland. First, give that land to ISKCON, otherwise I am not your guru. I am your guru as long as you follow ISKCON and Prabhupada, you get out from here. Maharaj is so pakka about Prabhupada. He will not follow Prabhupada out from here. So he, guru first, who is the guru? Who follows his guru? He is the guru. Who is following Prabhupada and Parashishya? That is guru. Other things are external. Everybody need bodily need. Everybody has. Okay, Mataji kahan gaya? हाँ, Yes, क्लियर? Prabhuji. Yes, Prabhuji. अभी किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक में, क्या आगे जाए हम? तो अभी आचार्य की कमेंट्री थोड़ा देखते हैं, ठीक है? देखना है कमेंट्री थोड़ा. तो ये सीधा स्वामी का कमेंट्री है, ठीक है? सीधा स्वामी का कमेंट्री. तो स्कंद नहीं चाहिए. फर्स्ट दिख रहा है ना? नहीं. यस ब्रो. नहीं, एक मिनट. ये तो ये श्लोक में उनका जो क्या अभी देखते हैं हम, यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे हाईलाइटेड में, ये उनका कमेंट्री है, ठीक है?
तच्छ तत्वम सब परिकर या भक्ति, मतलब तच्छ तत्वम वो तत्व, सब परिकर है, परिकर के साथ। वो कौन कौन से परिकर है? ज्ञान वैराग्य, है ना, उसके ही भक्ति को हम प्राप्त कर सकते। इति, इति मतलब ऐसा, इस तरह से। अभी उस तत्व का अन्वय किया है, तत्व का अन्वय किया, ज्ञान वैराग्य युक्त, ज्ञान वैराग्य के साथ ही आपको इस भक्ति को लिखना पड़ेगा। और क्या है? सुतेन, सुनना, क्या सुनने के बाद? ये श्रुतेन, वेदांतवादी श्रवणेन, ये तृतीय विभक्ति होती है। और फिर वो गृहीतया, आपको आत्मसात करना पड़ेगा, तभी आपको भक्ति, दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। मन गढ़न भक्ति करके फायदा होने वाला नहीं है। इसे जो भी प्रभुपाद लिख रहे, प्रभुपाद ने सभी आचार्यों की कमेंट्री को ही डाला है उसके अंदर, यानी छोटे से श्रुतेन वेदांत आदि श्रवणेन गृहीतया, उसको सुन सुन के बहुत कष्ट करके भक्ति को आपको आत्मसात करना पड़ेगा। ऐसे टाइम पर लोगों का नहीं है, चलो भक्ति भी कर लेंगे, नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। हाँ, शास्त्र आप पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, तो उसको भी फल, श्रम बोलते हैं। श्रवण करना भी एक श्रम है, क्योंकि फोकस करना पड़ता है, नींद आता है। सिंपल बोलता हूँ, अभी आपको, अगर आपने दोपहर में प्रसाद लिया तो आपको 100% नींद आएगा। तो मैंने आज सुबह 9 बजे प्रसाद लिया, अभी मैंने प्रसाद लिया नहीं, क्योंकि अगर सुनते समय नींद आए तो आपका श्रम केवल हो जाएगा ना। मॉर्निंग को 9 o'clock I take only corn, 2 काकड़ी एंड दाल का पानी, बस उतना ही, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है। नहीं तो 9 बजे खा लिया, मतलब ब्राह्मणों का खाना अलग होता है, क्षत्रियों का खाना, क्योंकि उनको खाओ और फाइटिंग करने को जाना, उनको पूरी बुद्धि का काम है। जिनको आपको, अभी आप में से कुछ लोगों को कंपनी का काम है, उनको खाना पड़ेगा। जो फार्मर होता है वो सुबह सुबह 4 भाकरी खाता है, मिर्ची खाता है और मेहनत करता है, नहीं खाएगा तो काम ही नहीं करेगा। और जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मतलब जन्म से नहीं, कर्म से, उसको शास्त्र पढ़ना है, वो खा लिया तो गया उसका पूरा एनर्जी उसमें। उसको हमेशा भूखा रहना चाहिए, ज्यादा खा लिया तो कहाँ शास्त्र पठन होने वाला, कभी नहीं होगा। कितने लोगों का अनुभव है, ये अनुभव से ही खुद आदमी सीखता है। जब आपको उसकी जरूरत नहीं, मेरे को शास्त्र सीखना है, मुझे पढ़ना है, तो अभी खाना थोड़ा बंद करते हैं। When the need is there, everything will happen. Realization will come, आपका सब रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन नीड नहीं है, ठीक है, खा लिया है ना। अभी मैंने सुबह 9 बजे के बाद अभी खाया नहीं है, केवल पानी पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे सोना नहीं है। नहीं तो लोगों को देखा लेक्चर देते देते भी नहीं आता था, और कंप्यूटर के सामने तो और डेंजर है ना। आप लोग बीच में जा सकते हो, थोड़ा पानी मारो, पानी भी उठ सकते हो, मैं ब्रेक भी देता हूँ, ताकि ज्यादा कंप्यूटर के सामने अच्छा नहीं। फिजिकली इज द बेस्ट, बट इट्स ओके। विद्याश्रम के स्टूडेंट को बोलता हूँ, बीच में उठो, पानी मारो, अलर्ट रहो। आपको जूस पीना है पी लो, लेकिन अलर्ट सुनना बहुत जरूरी, नहीं तो गए काम से। यू हैव टू बी फ्रेश, यू हैव टू बी फ्रेश। तो ये श्रीधर स्वामी का कमेंट्री था। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये जो पश्यन्ति चात्मनि चात्मानम, ये जो शब्द है, उसके 3 मीनिंग किए। जो योगी होता है वो कैसे परमात्मा का दर्शन करता है, जो निर्विशेषवादी होता है उसको ब्रह्म का दर्शन होता है, और भक्त को किसका दर्शन होता है? भगवान का साक्षात दर्शन होता है, सुनने के बारे में। तो एक शब्द के 3 अर्थ ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसमें बताया, उनके कमेंट में उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। लेकिन और एक पॉइंट आचार्य ने दिया है कि ये तीनों लोगों को भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। इवन परमात्मावादी और निर्विशेषवादी, अगर उनको उनका गोल प्राप्त करना है तो उनको वासुदेव भगवती करनी ही पड़ेगी, उसके सिवा उनको गोल प्राप्त होने वाला नहीं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसको ये कर्म और ज्ञान उसकी जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट जा सकता है, वो डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए वापस एम्फेसिस किस पे आ रहा है? भगवान के पर्सनल फॉर्म पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? भगवान के पर्सनल फॉर्म पे आ रहा है। ये क्लियर होगा पॉइंट? यहाँ तक पॉइंट क्लियर सबको? किसी का कोई डाउट नहीं है ना? नहीं तो हम आगे ऐसे जाएंगे नहीं। अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट वर्स। अभी 2 नंबर 3 नंबर 3 4 क्या है? सची माता जी आपको कुछ प्रश्न है क्या? हाँ पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 3 मीनिंग्स फिर से एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, जो निर्विशेषवादी होता है ना, क्योंकि देखिए 11 श्लोक का लिंक याद रखिए, वदन्ति तत्व तत्वविदस् तत्वम यद् ज्ञानम अद्वैतम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। तो जो ब्रह्मवादी है उसको ब्रह्म का दर्शन होता है, जो परमात्मावादी योगी होता है उसको परमात्मा का दर्शन होता है, और जो भगवान इति है उसको भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होता है। पश्यन्ति चात्मनि चात्मानम।
संस्कृत के अनेक अर्थ होते हैं और हमारे आचार्य उसमें बहुत एक्सपर्ट है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत ही एक्सपर्ट है। मतलब ये वदंती तत्व तो विदेश श्लोक के लिए 8 घंटे लगेंगे, इतना इतना उसके ऊपर शास्त्रों में विवेचन किया हुआ है ना, इतना शास्त्र में। तो इसलिए भक्ति, मैं खुद भक्ति वैभव अटेंड कर रहा हूँ, मैं खुद वापस कर रहा हूँ कि बार बार पढ़ना बहुत, जस्ट एक बार भक्ति शास्त्री हुआ, लेकिन भक्ति शास्त्री सच में हम हुए क्या? जस्ट भक्ति शास्त्री का एग्जाम दे, सच में हमें भक्ति को आत्मसात किया है, श्लोक को अच्छे से पढ़ा। इसलिए मैं वापस क्या कर रहा हूँ, भक्ति वैभव कर रहा हूँ और भक्ति शास्त्री को मैं स्टडी, इसका स्टडी करना ही पड़ेगा। गीता, भागवत, चैतन्य चेतामृत, डेली आपको आधा घंटा ये करना है। 3 बुक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे, तीनों बुक, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चेतामृत। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक विल सी। अभी इसका लिंक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे तत्दाना उन्होंने बोल दिया, उन्होंने ज्ञान भक्त्या सुत गई थे। अभी वापस कंक्लूजन आ जाएगा। अतः देयरफॉर, अतः पुंभे द्विज श्रेष्ठा, सभी बोलिए, अतः पुंभे द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य सिद्धिर्हरितोषणम्। अभी जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पढ़ी, उसका ट्रांसलेशन पढ़ी। थर्ड नंबर कौन है? यस प्रभु जी। हाँ पढ़ो। O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the personality of Godhead. ओके, तो वापस हम हर एक शब्द देखेंगे। अतः मतलब देयरफॉर, कुंभी है ना, ह्यूमन बीइंग, द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज, हे द्विजों में श्रेष्ठ शौनक मुनि, कि वर्णाश्रम में जो ड्यूटीज दी है, जो खुद को करनी पड़ती है, स्वनुष्ठित धर्म की जो ड्यूटी है, उन सबका फाइनल कंक्लूजन क्या पता है? संसिद्धिर हरितोषणम, संसिद्धि की प्राप्ति है ना। कल कमलोचन प्रभु क्या बोल रहे थे कि हमको रट्टा नहीं मारना है। अगर कोई श्लोक है जैसे अतः पुंभे द्विज श्रेष्ठ है, आपको यू शुड बी एबल टू राइट इट योर ओन वर्ड्स, that means you have understood. You should not try to by half the meaning, that is not good. अतः मतलब therefore पुंभी, हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ, अतः पुंभी वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, व्हाट इज दैट? संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान वासुदेव का तोषण करना। जो भी आपकी ड्यूटी, उसके थ्रू क्या करना? भगवान वासुदेव का तोषण करना। अभी देखिए यहाँ पे शब्द की यूज किया है, हे द्विज श्रेष्ठ, क्योंकि वहां पे जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे, ये पहले कर्मकांडी है, आपको पता नहीं है, ये शुद्ध भक्त नहीं है। वो लोग पहले कर्मकांडी यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते उनकी पूरी जो बॉडी काली हो गई, their entire body became black, nothing happened. So therefore when the Sud Goswami came, they requested, Baba, you give us the essence of all the dharma, you give us the essence of all karma kanda, and then he started now. Therefore he says, hey द्विज श्रेष्ठ, आप सब ब्राह्मण हो, you are all brahmana, but you don't know what is the duty of all the varnas? To please the Hari, to please Lord Krishna. All the varna and ashrama has to cooperate, and this point is emphasized by Prabhupada in the purport. This point is Prabhupada. The varnashram institution is constructed to enable one to realize the absolute truth. ये middle में है. It is not for the artificial domination of one division or another. When the aim of life, it means realization of absolute truth, is missed by too much attachment for the indriya priti or sense gratification, as already discussed hence before. The institution of varnashram dharma is utilized by selfish people meant to pose an artificial predominance over the weaker section. Prabhupada says the predominance is already there, but that is not the aim. It is well that the division of the caste and the order of life are meant for a smooth social intercourse and high thinking, self-realization, and not for any other purpose. Clear? अभी सिंपल एग्जांपल, हमारे टेम्पल में सब ब्रह्मचारी रहते हैं, सभी सेम है, ठीक है, कोई भी गा सकता है, कोई भी कुकिंग कर सकता है। सडनली सबके सब लोग किचन में चले गए, टेम्पल में वर्शिप के लिए कोई आए नहीं, सबके सब लोग क्लीनिंग में गए। हाँ,
सबके सब लोग कीर्तन में गए। तो देयरफॉर सिस्टम चलेगा नहीं ना, बोलेंगे अरे प्रसाद खाएं। तो देयरफॉर सिस्टम चलाने के लिए ये सिस्टमेटिक भगवान ने बनाया। अब कुछ लोगों में बहुत ताकत होती है, वो फार्मिंग जा सकते हैं, ये फार्मिंग कर सकते हैं, और उनको बोला आप जरा भगवत गीता का 3 घंटे प्रवचन, बोलेंगे वो मत बोलो। वही दुबला पतला ब्राह्मण ने उसको बोला जाओ 3 घंटा खेती में, वो स्ट्रगल करेगा लेकिन उसको होगा नहीं, बट उससे भगवान की खुशी नहीं हो रही। इसलिए आपके पास जो शक्ति है ना, उसको भगवान की समझ लगा, बट ऑल आर सेम, ओनली बाय भक्ति ही इज अ सुपीरियर, बट वन हु इज अ सुपीरियर ही थिंक्स ही इज द लोएस्ट। या ऐसा सिस्टम है, वो सबसे जो टॉप डिवोटी क्या होता है, मैं सबसे छोटा हूं, इसलिए ये बहुत प्रेम का संबंध होता है। तो वर्णाश्रम से हमें डरना नहीं। प्रभुपाद रशिया में गए तो बोले वर्णाश्रम हर जगह पे है ही है। जैसे आप कोई ऑफिस में जॉब कर, यू आर वर्किंग इन ऑफिस, आप में से कितने लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, आईटी हो या मैकेनिकल है, इन योर ऑफिस देयर आर 4 डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्लीनिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, और एक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होता ही होता है। कोई भी प्रोजेक्ट लिया, फर्स्ट उसका प्लान करना पड़ता है। दोज हु डू द प्लानिंग दे आर द हाईएस्ट पेड देयर इन द प्रोजेक्ट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट गलत हो गया, आपका पूरा एग्जीक्यूशन खराब, इसलिए वहां पे बार बार उसको जितना प्लान करता है प्रोजेक्ट में, उतना उसका एग्जीक्यूशन सही होता है। करेक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी एग्जीक्यूशन होती है। अगर सभी के सभी प्रोग्राम रहेंगे तो कंपनी चलेगा ही नहीं। कंपनी चलेगा ही नहीं। तो ये नेचुरल डिवीजन होते ही है। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल द 4 डिवीजन एंड 4 आश्रम? संसिद्धिर हरितोषणम। अगर ये भूल जाएंगे तो पूरा केओस हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएंगे, सेल्फिशनेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेल्फिशनेस हो जाएंगे। ये प्रॉपर इसमें बताते हैं। पैराग्राफ 1, गोल ऑफ द वर्णाश्रम धर्म, कोऑपरेट एंड रियलाइज टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉ। भगवद गीता 4.13, व्हाट इज दैट? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धि कर्तारम अव्ययम। कि चारों वर्णों का निर्माण केवल भगवान की खुशी के लिए। और ये कैसे वर्ण होते हैं? जन्म से नहीं होते, कर्म से होते। वो भी भगवद गीता में क्लियर दिया। हरितोषणम, हरि आराधनम इति, है ना। हरि आराधनम सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम देखते कि इसमें, इसमें किसी का कोई प्रश्न है, फिर उसके बाद आचार्य का टीका देखेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नहीं तो वर्णाश्रम के ऊपर इतना डिबेट चलता है कि बाबा लोग बोलते हैं वर्णाश्रम का नाम मत निकालो। वर्णाश्रम ऐसा नहीं है, उसके ये प्रभुपाद का लास्ट डिजायर है ना। मैं अभी वृंदावन में प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिवोटी को मिला, अभिराम प्रभु जो गृहस्थ है। बोले मुझे प्रभुपाद ने कितनी बार बताया, कितनी बार कि मेरा आधा सपना बचा है, मेरा आधा सपना बचा है। बोले कि मुझे सबसे ज्यादा एसोसिएशन प्रभुपाद का है, 45 ईयर। हितुल जयपताका महाराज भी बाद में आए। बोले 45 ईयर मैं प्रभुपाद के साथ रहा। और उनका कितना नाम कन्वर्सेशन है, इस अभिराम प्रभु वृंदावन में रहते हैं। मैं उनको 4-5 आवर्स का उनका मीटिंग किया था मैंने। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमें वर्णाश्रम से डरना नहीं है, वो नेचुरली है, वो नेचुरली है। आप माने या ना माने, वो ऑलरेडी है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम आचार्य की टीका देखेंगे, सिद्धार्थ स्वामी की टीका। ये श्लोक हो गया, यहाँ पे चालू हो रहा है। अतः द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विगाशः सुनिश्चित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। ये ऊपर गई इसको टीका। ये 13वां श्लोक है ना। ये कौन सा श्लोक है? 13। तो धर्मस्य फलम भक्तिर, धर्म का फल क्या है? भक्ति है। जो आप धर्म करते क्यों हो, ये यहाँ पे उपसंहार किया है। ये क्या है? इसका उपसंहार मतलब विश्लेषण करके दिया है। अत इति, अत इति, इसका विस्तार यहाँ पे किया है कि 1 मिनट आ गया। हाँ, अतः अब इसका अन्वय कैसा होता है?
हरि बोल। तो जी आवाज नहीं आ रहा है। अर्थ कामादि इति न, ये नहीं है अर्थ, क्योंकि इसके पहले आया था कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवत से तत्व जिज्ञासा ना तो यश कर्म भी। सेम पॉइंट यहाँ पे बताया कि लोग, बहुत सारे लोग धर्म क्यों करते हैं? अर्थ की प्राप्ति करने के लिए। नहीं, धर्मस्य फलम भक्ति न अर्थ काम आदि, ये नहीं। इसका उपसंहार करने के लिए यहाँ पे बोला है द्विज श्रेष्ठ हरितोषणम हरि आराधनम संसिद्धि। हरितोषणम मतलब भगवान की खुशी। अबे भगवान की खुशी कैसे होंगी? हरि की आराधना से। कुछ लोग बोलेंगे भगवान की खुशी मतलब मन में बस भगवान, नहीं, आराधना, प्रैक्टिकल आराधना मतलब हम उनकी सेवा करेंगे, डिटी वर्शिप करेंगे, भगवान के लिए कथा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। हरि तोषणम, एक यहाँ पे लिखा है हरि तोषणम मतलब क्या? हरेर आराधनम, और ये फलम है। ये क्या है? फलम। समझ रहे हैं? थोड़ा संस्कृत बहुत आसान है एक्चुअली। हम जितना पढ़ेंगे ना उसका मजा आएगा आपको। अच्छा लग रहा है क्या? बोर हो रहा है? ये तो बंद कर दूंगा मैं ऐसा कुछ नहीं। और ये पढ़ पढ़ के सबको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे सभी शब्द जो है ना संस्कृत के शब्द है। जितने भी शब्द हम यूज करते हैं ना, वो सब संस्कृत के शब्द है। उसमें उसका रियल मजा आता है। इंग्लिश में उसको हम इक्विवेलेंट शब्द ढूंढ ही नहीं सकते। लेकिन अभी हरितोषणम शब्द कितना सुंदर है, भगवान का खुशी। हरि आराधनम, भगवान की आराधना है ना। आराधना शब्द राधा से आता है, आराधना राधा है, उस भागवतम में आता है। तो ये क्लियर हो गया हमें कि अतः पुण्य, ये हो गया। तो इसीलिए अभी वापस 14वें श्लोक में सेम पॉइंट। तो अभी ठीक है, वो भगवान का जो आराधना कैसे करेंगे हम? हाँ, भगवान को तोषण कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसलिए 14वां श्लोक है, सब बोलिए साथ में, तस्मात् एकेन मनसा, बोलिए सब, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा। देखो हर एक श्लोक कनेक्टेड है। वो संसिद्धि में हरितोषणम कैसे करना है बाबा बताइए, कैसे करना? क्लियर है? फर्स्ट आप क्या करो, एक मन से, तस्मात् देयरफॉर, कंक्लूजन वापस है, तस्मात्, आसान है समझना, आपको रटा नहीं मारना है। तस्मात् एकेन, एक कुरु नंदना, श्लोक भगवद एकेन मनसा, वन पॉइंट दर्शन क्या करना है? भगवान, भगवान है यहाँ पे, भगवान बोला है, सात्वताम पति, वो भक्तों के पति है। भगवान भक्तों के पति मतलब भरता है, सर्वे सर्वा करता। भक्तों को कुछ पता ही नहीं है। भगवान भक्तों को भगवान के सिवा कुछ पता नहीं है, इसलिए क्या आगा? सात्वताम पति है ना। भगवान ऐसे भगवान जो सात्वताम पति है, उसके बारे में क्या करना है? श्रोतव्य, स्टार्ट विथ श्रोतव्य, कीर्तितव्य। पहले सुनेंगे तो बाद में हम उनको गुणगान करेंगे। ध्येय मतलब स्मरण करेंगे और फिर पूजा करेंगे, है ना। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लय पाए प्रेमधन, है ना। और क्या, वो कौन सा? हाँ, एक मिनट। और 5 क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने श्लोक कौन सा मैं भूल गया। हाँ, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन। जो 64 लिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाया सेवन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है साधु का सत्संग, भक्तों का। जैसे हमारा अभी ये सत्संग हो रहा है, तो क्योंकि सत्संग में ही सब कुछ हो सकता है। सत्संग चला गया तो बाकी का कोई भी प्रक्रिया हो नहीं सकता। तो इसलिए जो श्रोतव्य मतलब भगवान के भक्तों के साथ ही, है ना। सताम प्रसंगा नमोबीर संपितो भवन्ति सत्कर्म रसायन कथा तज्जोशनादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर है ना प्रविश्य। श्रद्धा भक्तिर भक्ति रतिर अनुष्यत कि सताम, सताम सेम, सतान मतलब भगवान के भक्त, सात्वताम मतलब भगवान के भक्तों का, सताम भगवान के भक्त, सताम प्रसंगान ऐसे भक्तों के साथ, सताम प्रसंगान नमो वीर्य भगवान की वीर्य के बारे में, कथा के बारे में सुनो।
फिर तब क्या हो जाएंगे, श्रद्धा, रति, भक्ति, ये धीरे 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 आपको प्राप्त हो जाएगा। यही पॉइंट इस श्लोक में बताया। अभी पापा जी इसमें क्या क्या बोलते हैं, मैंने इसमें लिखा है ना, तस्माद एकेन मनसा। देयर में भी, हाँ मैंने जो पॉइंट बोला था ना आपको कि ये पॉलिटिकल लोग, एनी मैन फ्रॉम एनी सोशल स्टेटस बिकम्स अ वेल नोन मैन in a human society within a very short time if we simply glorify truly or fastly in the daily newspaper. Same point Prabhupada ji likhte hain. But Prabhupada says, but such a propaganda by false glorification of an unqualified person cannot bring about any good, either for the particular man or for the particular society. There may be some temporary reaction to such propaganda, but there are no permanent effects. उसके सिवा तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य शोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। अभी आएगा सेक्शन हम लेंगे, नारद मुनि बहुत फेवरेट श्लोक है मेरा। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो, जितना भी अग है, अघासुर, पूरा जो भौतिक जगत अग से भरा हुआ है ना। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम, एक एक श्लोक भी भागवत का सुनेंगे तो पूरा जो अघासुर भरा है पूरे भौतिक जगत में वो नष्ट हो जाएगा। यस्मिन् पदि श्लोकम अबध्यवत्ति नामानि अनंतस्य, ये भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करंडली जो महाराज आए ना, उन्होंने एक सुंदर कथा बताया था जबा टॉक्मिकल, कि कैसे एक तांत्रिक भगवान के भक्त के ऊपर मैजिक कर रहा था, लेकिन 2 घंटा ट्राई किया तो मैजिक फेल हो गया उसका, क्योंकि वो भगवान का नाम ले थे। और उसने खुद बोला कि मैं आपके ऊपर मैजिक कर रहा हूँ लेकिन मैजिक काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, और एक बार प्रभुपाद जी के भक्त इलाहाबाद में आए थे कुंभ मेला में, तो हमारे भक्तों को क्या एकदम एक मंत्री को जाके मारने लगे, उसको हाथोड़ा, अरे तू मूर्ख है, हाथोड़ा ब्रीथिंग उसको करने लगे। वो आ गया गुस्सा, उन्होंने उनको बेहोश कर दिया। सबने बोला प्रभुपाद हमारे तो भक्तों को एक मंत्री ने बेहोश कर दिया मंत्र बोल के। प्रभुपाद बोले उसकी ये हिम्मत है। फिर वो आया प्रभुपाद को मिलने ना, जैसे प्रभुपाद को मिलने प्रभुपाद ने पानी डाला उसके ऊपर, वो गिर गया 8 घंटा, उठा ही नहीं, वो बेहोश हो गए। बस पानी डाला प्रभुपाद जी ने, कुछ मंत्रों ने बोला, फिर बाद में खड़ा होकर प्रणाम किया, बोले स्वामी जी क्षमा करो, आपके भक्तों को कभी छेड़ूंगा नहीं। बोले समझ गया ना तुझे, जा अभी। मतलब आपको क्या लगता है प्रभुपाद को पावर नहीं है? ये सब मांत्रिक उनके सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें इसलिए हमेशा एक मंत्र याद रखो, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। और प्रभुपाद आपके सपने में आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो प्रभुपाद गाइड भी करें आपको। मतलब प्रभुपाद हमेशा, और हमारे जो गुरुजन वर्ग है वो भी तो प्रभुपाद की सन है ना, तो प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव वो भी हमको वही बताते हैं, है ना। तो उनका भी मंत्र बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु शिष्य की ताकत भगवान से भी ताकत से ज्यादा है। भगवान ये बोलेंगे छोड़ यार, ये बार बार रिपीट किया है, बार बार उसको मौका देने वाला, बार बार हम प्रिंसिपल तोड़ते बोलते भगवान माफ कर, बोला हट। लेकिन गुरु कभी भी जाओ, बोला ठीक है आ जा, वापस मत कर। कितने लोगों का में सच बोलना है कि नहीं? गुरु इज मोर मर्सीफुल, प्रभुपाद इज ऑलवेज मोर मर्सीफुल। कृष्णा विल देयरफॉर इन अर्ली इन द मॉर्निंग हम भगवान का गीत कहाँ गाते हैं? संसार दावा नदी लोका, एंड व्हेन द लॉर्ड विल से, अरे मेरे भक्तों को गुण गाने, चलो आ जाओ, है ना। क्या करें, अभी मेरे भक्त का महिमा गा रहा है, उसकी पूजा करें तो मुझे उसको लेना ही पड़ेगा, मुझे उसको लेना ही पड़ेगा। तो ये है भगवान के भागवतम की शक्ति, भगवान के नामों की शक्ति। नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवा, हमें फेथ होना चाहिए, इसके ऊपर फेथ होना बहुत जरूरी है। यही पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है। द टेंडेंसी टू ग्लोरीफाई अदर्स और हियर अदर्स इज देयर। हर एक व्यक्ति किसी के बारे तो सुन ही रहा, तो व्हाई नॉट हियर अबाउट कृष्णा, व्हाई नॉट हियर अबाउट द आचार्य और ग्लोरियस संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। और इसलिए मैं बच्चों को हमेशा आचार्य कथा बोलता था गुरुकुल में, हर दिन 7:30 से लेके 8:30। और जब मैं कथा बंद करता तो इतना चिल्लाते थे, प्रभु जी अभी और चाहिए हमको, और चाहिए। नहीं बोला आज बंद, कल सुने। नहीं, वो झगड़ा करते थे, आवाज करते थे हमको और कथा सुनना है, लेकिन बोले नहीं अभी सो जाओ, दूसरे दिन सुनेंगे। और दूसरे दिन 7:30 को कथा था तो 7:15 को मेरे रूम में, प्रभु जी कथा,
प्रभु जी उनको सबसे फेवरेट उनका क्या है, आचार्य कथा। और वो कौन सा, प्रभुपाद कथा, भक्ति सिद्धांत कथा, गोस्वामी कथा, बस उनको कथा बहुत अच्छा लगता है, और कथा हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं। और वो स्पेशली भगवान के भक्तों का कथा, स्पेशली किसका कथा, भगवान से भी भगवान के भक्तों का कथा हमें ज्यादा भगवान के पास लेके जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हृदय को प्रिय होता है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए उनका कथा सबसे इंपॉर्टेंट है। और श्रीमद् भागवत में वही ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तस्मा देखें मनसा भी देखते हैं हम सिद्धेश्वर स्वामी जी क्या बोलते हैं। हाँ, आचार्य है ना वो उनका भी कृपा हम ले लेंगे। हाँ, तस्माद एकेन मनसा भगवान सत्वताम मते, है ना। तस्माद देयरफॉर, क्या आता है, तस्माद देयरफॉर एकेन मनसा, तस्माद एकेन मनसा नित्यदा, नित्यता मतलब हमेशा, सात्वतान मतलब भगवान का पति, सॉरी भगवान के भक्तों का पति, सात्वताम पति ही भगवान। उनके पर क्या करना है, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, ध्येय, पूज्यश्च इति, ये सब करो, ये सब करो। अभी उसमें क्या बोलते, यस्माच्च भक्तिहीनो धर्म केवलम श्रम, आप कितने भी धर्म फॉलो करो वो क्या है, श्रम है। यस्मात् देयरफॉर भक्तिहीनो धर्म, भक्ति को छोड़ के वो धर्म क्या है, केवल विषय भांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, केवल विषय भांड। इदानीम देयरफॉर, यहाँ पे इदानीम तू मतलब स्ट्रेस है, भक्तिर मूल भक्ति, भक्ति ही उसका फल है, इति यदिति, ये सब चीज का फल क्या है, भक्ति, यहाँ पे क्लियर किया है। और देयरफॉर क्या बोलते हैं, एक ने ग्राह्य मनसा, और इसके लिए आपको उसको कैसे सुनना चाहिए, एकाग्र करके सुनना चाहिए। कैसे करना चाहिए, एकाग्र करके सर्व तस्मात् भक्ति, सॉरी मैं नीचे गया, भक्ति नो धर्म केवलम श्रम एव, यहाँ पे सॉरी ये जो है ना यहाँ पे टीका है, ये लाइन पूरा, हाँ, एकाग्र मनसा तस्मादिति, क्या करना चाहिए आपको, तस्मात् भक्ति प्रधान, जो भी आप धर्म का कार्य कर रहे हो कैसे होना चाहिए, भक्ति प्रधान। इसलिए मुझे पता है हमारे विलेज में लोग गाते थे, अलग अलग पूजा करते, लेकिन अंत में क्या बोलते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 बोलते हैं महाराष्ट्र में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 3 बार बोलेंगे और ऐसा परिक्रमा मारेंगे, और केशवम समर्पणम ऐसा सब मंत्र बोलते हैं। उनको पता है कि उसके से होने नहीं वाला है, कितना भी आप कर्म कांड करो, लेकिन ये मंत्र नहीं बोलेंगे तब तक पूरा काम होने वाला, फल प्राप्त। हर एक यज्ञ कोई भी करो आप, यज्ञ के बाद में विष्णु को आह्वान करना ही पड़ता है, कृष्ण का स्मरण करना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि कोई भी कर्म कांड कर रहे हो तो भक्ति प्रदान होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, इसलिए हम इस्कॉन के ड्यूटी भी यज्ञ करते हैं, किसी के घर में जाके हम अन्नप्राशन सेरेमनी करेंगे, वास्तु शांति करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भक्ति, हरिनाम संकीर्तन, भागवत का श्रवण, है ना, ये उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है भक्ति प्रदान। नहीं तो उसका क्या है, वो श्रम है वही केवलम, वो क्या हो गया, श्रम है केवलम। ठीक है, अभी और इसीलिए आप क्या कीजिए, हे मुनियो, क्या कीजिए आप, और ये जो आप, हाँ ऑफकोर्स अब ये मुनि बोलेंगे, लेकिन हमारे हृदय में बहुत जन्मों जन्मों से ग्रंथि है, क्योंकि हमने कर्म कांड किया है, ज्ञान कांड किया है, हम भगवान की एथीस्ट बने हैं, ये सब ग्रंथियां है ना, उसका क्या है, हम भगवान के बारे में सुन, लेकिन वो बीच बीच में आएंगे ना, वो टेंशन मत लो आप। यदनुध्यासिना युक्ता, बोलिए यदनुध्यासिना युक्ता, आवाज आ रहा है ना, कर्म ग्रंथि निबंधनम, श्लोक को बोलना जरूरी है, कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम, हाँ छिन्दन्ति, ये अनेक वचन है, एक वचन नहीं, ये वर्तमान काल का छिंद धातु का अनेक वचन है, कि जितने भी कर्म ग्रंथि है ना वो नष्ट हो जाएंगे। कर्म ग्रंथि जो बांध के रखे, निबंधन, बंधन और नी मतलब और ज्यादा,
जैसा दुस्तर सुदुस्तर, बंधन निबंध, मतलब अनेक सालों से आपको बांध के रखा है, कर्म ग्रंथि, ज्ञान ग्रंथि, कर्म ग्रंथि आदि, है ना। हाँ, लेकिन वो कैसे जा सकता है? अनुध्यासिना, बार बार। हाँ, तलवार, आसीना मतलब तलवार, भगवान की ध्यान जो हम क्या कर रहे हैं श्रोतव्य के, ये क्या बन जाता है? युक्ता, ये तलवार, श्रोतव्य कीर्तितव्य युक्ता यद अनुध्यान, ये क्या है? आसीना, ये तलवार बन जाएगा। और ये क्या करेंगे? कर्म ग्रंथि निबंधनम कर्म ग्रंथि छिंदंती। तो इसलिए कौन ऐसा कोविद है? कस्या कोविदा न रतिमस्ति, जिसको भगवान की कथा में रति ने, ऐसा कोई है? ये मतलब इसको बोलते कि ऐसा विवरण, उसको एक बोलते हैं कि भाई किसी को ऐसा प्रश्न, ऐसा कोई है जो सुनने में, मतलब सबको सुनना चाहिए। अलग अलग अलंकार में बोला है, ऐसा बोलते इसलिए सबको सुनना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। जब उसको और हाइट में देखा जाए तो ऐसा कोई है मूर्ख व्यक्ति जो सुनने नहीं वाला, ऐसा बोला है। हाँ, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो उसको सुनना नहीं चाहता है, क्या? भगवान के बारे में श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजस्य इत्यादि। अभी इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, जो अभी नंबर, नेक्स्ट नंबर। सॉरी, मैंने आज आपको थोड़ा ब्रेक दिया नहीं है। कल मैं एग्जैक्टली मुझे रिमाइंड कर रहे हैं 1 घंटे के बाद सबको ब्रेक मिलेगा 5 मिनट का, जिसमें थोड़ा पानी पी के आ सकते हैं। अभी भी किसी को पानी पीना तो जाओ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पढ़िए। With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work, karma, by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? कोविद, कोविद मतलब बहुत बुद्धिमान, विद्वान, है ना, नॉट नॉर्मल पर्सन। अभी प्रॉपर जिसमें क्या बोलते हैं, श्लोक संख्या 15, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधन। ठीक है, अभी देखो सिला विश्व, पहले प्रभुपाद जी देखते हम क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते लिबरेशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिवोशनल सर्विस, ओनली अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज नॉट सफिशिएंट, डिवोशनल सर्विस गारंटीज लिबरेशन। तो प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी बोलते लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज इज देयरफॉर, कोई तो डिस्कस कर रहे हैं, a byproduct of the devotional service. Attainment of the spiritual knowledge is not sufficient to ensure liberation. Second paragraph का दूसरा लाइन है, such knowledge must be covered with or coated with the devotional service too, so that ultimately the devotional service alone predominate. भारत में लोग क्या है, अरे भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए, बस पढ़ते रहो बट वो प्रैक्टिकल भक्ति कभी करेंगे नहीं ना। और इसीलिए क्या, उनको भगवान का मतलब वैष्णव सदाचार का कुछ नॉलेज नहीं। अभी जैसे मैं एक बार राजस्थान में जा रहा था, एक माता जी को देखा मैंने राजस्थानी, उसके पास लड्डू गोपाल थे, और सुबह सुबह 5 बजे मैं लगा अरे भगवान है, वाह। मैंने उधर भगवान को प्रणाम किया और उनको बोला मैं चैंटिंग करूँ भगवान के सामने, बोले करो करो करो। और फिर हम 2 लोग उन भगवान के सामने चैंटिंग किए। बोले माता जी क्या भक्त है यार, भगवान को लेके जा रहे हैं, ऑफकोर्स भक्त है। लेकिन सडनली उन्होंने 10 का खाना मंगाया और खाने लगी। अरे क्यों हुआ? श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधिना। तो ऑफकोर्स आई अप्रिशिएटेड माता जी, क्योंकि एटलीस्ट वो भगवान को लेके जाने का लेबर तो कर रही है ना, वो अप्रिशिएट किया मैंने। ऑफकोर्स अभी किसी वैष्णव के टच में आएंगी तो उसको वो समझ में आ जाएंगे। हाँ, अगर वो वैष्णव के टच में तो तुरंत, क्योंकि फायर, मेरा यहाँ का लाइट गया है ना, हाँ आ गया, तो फायर काफी अच्छा है ना, फायर का भी अच्छा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते कि जस्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं। भारत के लोग जब तक प्रभुपाद नहीं आते तब तक डिवोशनल सर्विस किसको पता नहीं था। हमने भी सुना था अरे हाँ मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मैक्सिमम सत्संग में क्या बोलते मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन अरे एग्जैक्टली प्रैक्टिकल डिवोशन क्या है वो केवल संप्रदाय में पता चल सकता है। और वो प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया कि हर एक व्यक्ति को पता है भगवान का डीटी लाओ, भगवान को भोग लगाओ, तुलसी का पत्ता अर्पण करो, मंगल आरती करो, तुलसी आरती करो। तुलसी को पानी कौन डालता था? पहले लोग रखते थे लेकिन इतना समझता नहीं था, है ना, कल्चर धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। तो इसलिए प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस इज इंपॉर्टेंट। और प्रभुपाद बोलते वो तो छोड़िए, अगर कोई ज्ञान मार्ग में भी है, कोई कर्म मार्ग में, लेकिन अगर उसमें भक्ति का कोट करेगा तो उसको लिबरेशन प्राप्त होगा। और इसलिए उसको बोलते कर्म योगा और ज्ञान योगा। वो भी प्रभुपाद जी ने इसमें बोला, लेकिन भक्ति इज इसेंशियल, डिवोशनल सर्विस इज इसेंशियल, ये प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं। हाँ, और प्रभुपाद जी बोलते 6 गोस्वामीज हैव गिवन अस द वे
in their literature for all caste in an ashrama, in varnashrama, how to do this bhakti. ये स्टेटमेंट एंड में आया है. दो गोस्वामी एंड में देखिए परपट के लास्ट पैराग्राफ में, the Goswamis of Vrindavan who were authorized by Sri Chaitanya Mahaprabhu to preach the bhakti cult rigidly followed this rule and made immense literature of the transcendental science for our benefit. They have chalked out ways for all classes of men in terms of different castes and orders of life in pursuance of the teachings of Srimad Bhagavatam and the similar other authoritative scripture. मैं इसके ऊपर आधा घंटा विचार कर रहा था कि बाबा क्या है, प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों लिखा है. क्योंकि हमारे आचार्य ने कौन कौन से बुक लिखा है. पहले है उपदेशामृत, फिर बाद में भक्ति सामर सिंधु, फिर बाद में हरि भक्ति विलास, भागवतामृत. ये प्रैक्टिकल डिवोशन सर्विस कैसे करना है, 64 अंग क्या है, ये तभी बोला प्रभुपाद ने ऐसा क्या लिखा, कहाँ है. और आप देखना भक्ति रसामृत में रूप गोस्वामी ने सभी शास्त्रों से रेफरेंस दिया है, कोई मनगढ़ंत लिखा नहीं है, सभी शास्त्रों से, विष्णु पुराण, ये पुराण सब. तो अगर हमने ये बुक्स को अच्छे से पढ़ाई किया भक्ति शास्त्री का, कौन सा, भक्ति सामत सिंधु, है और हरिभक्ति विलास, जो टॉप पे जाएंगे तो आपको क्लियर कट उसमें कौन से, जैसे गृहस्थों के नियम अलग होते हैं, ब्रह्मचारियों के अलग होते हैं, इवन इस्कॉन के भक्ति में भी नियम अलग होते हैं. क्योंकि गृहस्थ को उसके अलग नियम रहेंगे, ब्रह्मचारी के अलग रहेंगे और सन्यासी के भी अलग रहेंगे. चैंटिंग 16 डाउन नहीं बोल रहा हूं मैं, जो व्यवहारिक कर्म है. कौन से कर्म है, जैसे ब्रह्मचारी को श्राद्ध करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो गृहस्थ को है, उनको ये सब पालन करना पड़ेगा. क्योंकि उनको कुछ कुछ समाज के भी नियमों का पालन करना पड़ता है, लोक लज्जा के कारण, है ना. समाज के मान रहे तो भक्ति ठाकुर ऐसा बोलते हैं क्लियरली. भक्ति ठाकुर अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती भी बोलेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं, उनके कमेंट आगे आए. तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, गोस्वामी की किताबों में. इवन प्रभुपाद के पत्र भी मिलेंगे आपको धीरे धीरे, लेकिन जिसको पिन पॉइंटेड चाहिए उसको मिल जाएंगे. ठीक है. अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें एक बहुत सुंदर बोलते हैं. हाँ, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि बंगाल में, अभी वो बंगाल के थे तो बंगाल के एग्जांपल देंगे कि बंगाल में क्या होता है, लोग, उनका जो सैलरी आता है, महीने का सैलरी आता है, तो उसको वो उनके जो कपड़े आते हैं ना, धोती, उसमें अलग अलग ऐसा सेक्शन करके बांधते हैं, नोट करके, भाई आज का खर्चा ये है, 2 दिन के लिए खर्चा है, ऐसे अलग अलग नोट करते हैं. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि उसी तरह से हमारे जो पूरे जो हमारा जीवन है उसमें हमको हमारे पिछले कर्मों का फल धीरे धीरे बरोबर थोड़ा थोड़ा मिलने वाला है. थोड़ा थोड़ा क्या मिलने वाला है, ऐसी ग्रंथि बनी है, जैसे धोती में ग्रंथि होती ना, वैसे इस कर्मों की ग्रंथि अलग है. तो लेकिन क्या होता है, ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, भक्ति से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा. उन्होंने ये बरोबर एक कर्म ग्रंथि को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया था उनके कमेंट. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं कौन हमारे सिद्धार्थ स्वामी जी क्या बोलते हैं. ठीक है. इसमें किसी का कोई प्रश्न है, परपट में क्लियर हुआ नहीं, लिंक समझ में आ रहा है? तो अभी इसमें सिद्धार्थ स्वामी क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम. नहीं, ये कौन सा खोला, ऊपर कैसे गया है, तृतीय स्कंद में पता नहीं. अब ये कौन सा वर्ष है, 15. यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, तस्मा देखे हो गया ना. हाँ, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, 15 श्लोक. तो क्या यद अनुध्या आसीना युक्ता कोविदा, जो बुद्धिमान लोग कर्म ग्रंथि निबंधनम, कैसे करते हैं, कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंती तस्य कथा रथिम. हाँ, वो भगवान के सुनने से वो उसको छिंदंती करते, इसलिए तस्य कथा, ऐसे भगवान की कथा
में रति को न कुर्यात्, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं आ रहा है। अन्वय अभी भक्ति रहितो धर्म केवलम श्रम एवं इति प्रपंचितम, ऑलरेडी बताया है कि भक्ति हित जो कर्म है ना वो क्या है, केवलम श्रम है। ठीक है, अब यहाँ के क्या बोले, इदानीम तु भक्तेर मुक्ति फलत्वम प्रपंचित यदि यस्यानुध्याय अनुध्यानम सेवासी खड्गस्तेन, कि बाबा खड्ग कौन सा ये है, भगवान का सेवा। क्या करना है आपको, भगवान का सेवा, अर्थात जिन श्री हरि की ध्यान की तलवार है, उस ध्यान रूपी तलवार के द्वारा विवेकी पुरुष क्या करता है, अहंकार रूपी ग्रंथि को काट डालते हैं। वो अहंकारी मनुष्य को कर्म के बंधन में बांधने का काम करता है। तो उसको काट डालने का काम कौन कर रहा है, श्री हरि की कथा। हाँ, ननु ये क्या है कि ग्रंथिम अहंकारम, ये जो अहंकार है निबंधति, यही हमको बांध के रखा है ना। हमको सबको पता है कि सबसे लास्ट का लेयर क्या अहंकार है, और ये अहंकार हमको बांध के रखा है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अहंकार की। और इसको क्या करता है, ये छिंदंती, ये भगवान की सेवा का जो तलवार है सुनने का, तो वो क्या करता है, ऐसे इस अहंकार को क्या करता है, वो छिन्न छिन्न करता है। और इसीलिए इति तस्य कथायां रतिम को न कुर्यात्, ऐसे भगवान की कथा में रति किसको नहीं आने वाली है। ऐसा कोई पुरुष है जिसको भगवान की कथा में रति आने नहीं वाली। अभी हम क्या करेंगे, केवल एक श्लोक लेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे, क्योंकि श्लोका नंबर ऑफकोर्स अभी 16 से लेके 22 तक ये जो भक्ति के स्टेजेस है ना, अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा अनिष्ठा तथा आसक्ति रुचि प्रेम भाव, ये जो भक्ति के स्टेजेस है ये अभी 16 से लेके 22 से चालू होते हैं। इसलिए ये टोटली एक नया सेक्शन होता है ना। शुश्रूषोषत दानस्य, भगवान के भक्तों की कथा, श्यान मह सेवया, और जस्ट नेक्स्ट नंबर इज ऑफ हिज गेस। ओके, हाँ, तो अभी ये जो श्लोक नंबर 16 से 22 तक क्या चालू होने वाला है, भक्ति का प्रोसेस। तो हम कल क्या करेंगे, अभी टुमारो वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली डॉट, आई एम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एग्जैक्टली 2:30 से लेके 10 मिनट तक हमारा पूरा प्रेयर होगा, और इमीडिएटली 3:30 तक हमारे सेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक रहेगा, मुझे रिमाइंड करो, और 3:30 से 4:30 में बचा हुआ सेक्शन। आज थोड़ा हमने उसका एक ओरिएंटेशन किया है ना, इसलिए मुझे थोड़ा समय चला गया। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? अगले श्लोका का लिंक मैं आपको पहले से बता देता हूं, है ना। हाँ, ये जो श्लोक था 15वां श्लोक, अभी कोई बोलेगा बाबा आप ये सब बोल रहे हो लेकिन हमको हरिकथा सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। सीधा समय बोलते ननु, सत्य बोला आपने, सत्य में वो कर्म निर्मूलनी हरिकथा कथा अस्ति तथापि, बट तथापि तस्याम रुचि नोत्पद्यते बाबा, उसमें रुचि ही नहीं हमको। जस्ट आपको लिंक भी करता हूँ, थोड़ा बहुत सुंदर लगता है कि इसका कनेक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या बोलते सीधा स्वामी है, दिख रहा है ननु मतलब डाउट है क्या, सत्य। आपने सत्य बोला कि कर्म निर्मूलनी क्या है, हरि कथा कर्म निर्मूलनी है, कर्म का निर्मूल करनी है ना, हरि कथार कर्म, लेकिन तथापि तस्याम रुचिर नोत्पद्यते बाबा, हमें उसमें रुचि ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, किम कुर्म करोति, हम भोजनम करोति, हम पठनम करोति, कुर्म है ना, ये अनेक वचन में क्या करना चाहिए फिर वो बता रहे यहाँ पे। हाँ, तत्र शुश्रूषोरिति, वो कैसे होगा, शुश्रूषा करने से। पुण्य तीर्थ मतलब जब लोग तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं ना, तो वहां पे तीर्थों का ध्यान सेवा करेंगे, भगवान का दर्शन लेंगे, गंगा का पानी पिएंगे, और उसके बाद क्या होगा पता है, उनको वहां के भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होगा, और वो देखेंगे ये क्या सुन रहे बार बार, ये क्या डिस्कस कर रहे, हमको भी सुनना चाहिए। मेरा लाइट गया है, कभी भी लाइट जा सकता है ना, यहाँ से हाँ आ गया। अच्छा, दोनों जगह से मैंने कनेक्शन लेकर आया। फिर ये जो लोग बोले, ये लोग कथा क्या करते हैं, ये डिस्कशन क्या करते रहते हैं, और जब उनका सेवा करेंगे, और फिर सेवा करने के जो परमात्मा है ना, वो खिड़की खोल देता है,
माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दुषा नटो नाट्य धरो यथा। हाँ? ये कुंती वाणी का प्रयोग बहुत सुंदर है। हाँ? स्टार्टिंग कहां से उसका, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो अंतर बहिर् सब जगह, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझने वाला है। तो कैसे, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो पर्दा है। जवनिका मतलब पर्दा, माया का पर्दा है। वो क्या, किसको दिख सकता है? तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योगम विधानार्थम कथम पश्चेम स्त्रिया। कैसे दिख सकता है? भक्ति योग से। मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे दिख सकती हूँ भगवान? उसकी ह्यूमिलिटी है कुंती की। वो कैसे दिख सकता है? वो पर्दा कैसे निकलेगा? भक्ति योग से। और वो कौन खोल सकता है? तथा परम हंसाना मुनि नाम अमलात्मा नाम। जो मुनि है, अमल है, कुछ मल नहीं है, वही देख सकते हैं। और क्यों? भगवान की भक्ति द्वारा। और इसलिए जब हम तीर्थों में जाने का एक ही पर्पस है। वहां पे जब हम थोड़ा घूमेंगे, तीर्थों की सेवा करेंगे, लाइन में लगेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, गंगा जल लेंगे, तो फिर थोड़ा शुद्धिकरण होता है। फिर शुद्ध भक्त का कथा करेंगे। लेकिन अभी आगे आएगा डिस्कशन में, विश्वनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं कि अगर कोई तीर्थ को नहीं गया, लेकिन डायरेक्टली अगर वो भगवान के भक्तों से सुनता है ना, वो तीर्थ का जाने की जरूरत नहीं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन हृत्कर्ण रसायन कथा। इसलिए तीर्थों का सेवन करने से भी पावरफुल क्या? भगवान के भक्तों से कथा सुनना। ये वो प्रूव करेंगे, बहुत सारे श्लोक बोलेंगे और उसको वो प्रूव करके दिखाएंगे। तो वो आगे कल सुनेंगे। इसलिए तब तक आप ट्यून इन रहे, ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न है? स्टॉप नाउ। हाँ, यस, किसको क्वेश्चन है? पूछिए। हाँ, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जो हमारे माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारे जो लोकल जो टेम्पल्स हैं, क्या वो भी तीर्थ स्थल है? क्या आपका आवाज नहीं, सॉरी। जो हमारे जो लोकल टेम्पल्स हैं, क्या वो भी सॉर्ट ऑफ तीर्थ स्थल है? हाँ, अरे प्रभुपाद ने बोला हमारा हर एक इस्कॉन टेम्पल सबसे बड़ा तीर्थ है। ये वृंदावन से अभिन्न है। हाँ, इवन वृंदावन मायापुर में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। इवन कितने सारे लोगों को लॉस्ट हो गए वृंदावन में, तो इसलिए हमारा जो भक्तिदान गुरुकुल है वो थोड़ा दूर अच्छा है। अनुज प्रभु, हाँ, क्या है वो, वहां पे क्या क्या स्टाइल कर रहे हैं लोग। अरे मतलब ऑफकोर्स हमें किसी का कुछ फॉल्ट फाइंड करना नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। भक्ति से भी अनर्थों का उत्पन्न होता है, भक्ति से भी अनर्थ की निर्मिति होती है। इसलिए तीर्थ में जाने के बाद भी हमको किसी महान भक्त के शरणागति में रहना जरूरी है, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएंगी, बहुत परेशानी हो जाएंगी, है ना। हमारे लोकल टेम्पल, प्रभुपाद के टेम्पल है, वो तो वैकुंठ है, वृंदावन से अभी प्रभुपाद ने, मेरे पास कितने परपट है, आवर ऑल इस्कॉन टेम्पल्स आर वृंदावन धाम, सो इनवाइट ऑल द वानप्रस्थास टू कम एंड स्टे देयर। ऐसा लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना। प्रभु जी, माय सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे हम देखते हैं कि मतलब कुछ सन्यासीज हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मतलब भगवान की भक्ति करते हुए, मतलब, और कुछ सन्यासीज का स्मूथ रहता है। तो जो सन्यासीज जो बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष कर रहे हैं या कुछ फेस कर रहे हैं, तो क्या वो मतलब वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, मतलब, या फिर ये मतलब ये कार्मिक उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मतलब कि नहीं, ऐसा कुछ भी हमको कॉन्क्रीट नहीं करना चाहिए। सन्यासी के साथ क्या हो रहा है हम जज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मुझे स्ट्रगल नहीं, इम्पॉसिबल। भौतिक जगत में स्ट्रगल होने वाला है, भौतिक जगत में स्ट्रगल होने वाला है, ये हमको समझना चाहिए। और सन्यासी को अभी जैसे प्रभुपाद को कि कितना स्ट्रगल नहीं हुआ था क्या, हाँ, बट ये और किस सन्यासी का स्मूथ चल रहा है आपको क्या पता, आप ही स्मूथ चल रहा है, बाद में सडनली कैंसर हुआ, आपको क्या पता है। अरे किसी के साथ क्या होगा हमको पता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल सबको होने वाला है। हमको एक्सटर्नली वो पीसफुल दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से उसकी हेल्थ खराब हो सकती है,
या वो टेम्पल के इश्यू सॉर्ट कर रहा है, वो कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है। और कितना भी स्ट्रगल होने के बाद उसका भक्ति कैसा है। और एक बार प्रभुपाद बहुत सीरियस थे, तो एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद इज देयर एनी प्रॉब्लम, यू आर फीलिंग नर्वस? ही सेड, यू फूल, यू डोंट अंडरस्टैंड माय एक्सटेसी। वी कैन जज ऑल्सो। सब कोई सन्यासी सीरियस है, आपको लगेगा कुछ तो प्रॉब्लम, महाराज कुछ इश्यू, आपको क्या पता, उसको वो एक्सटेसी में रहेगा, आपको कुछ पता है। प्रभुपाद ने इतना डांटा, बोले, यू फूल, डू यू अंडरस्टैंड यू व्हाट इज आई एम इन एक्सटेसी, यू डोंट अंडरस्टैंड माय एक्सटेसी। है ना, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई? तो वी विल स्टॉप हियर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो shall I leave, प्रभु? You take care now. अनुज प्रभु, अटेंडेंस वो सब आप देख लें। यस प्रभु। एनीवे मैं 18 तारीख को वृंदावन जा रहा हूँ।